ऐसे कोई टेक्निक, तीन सिंपल टेक्निक्स बताइए जब इंसान ट्रिगर हो रहा हो उस समय पे कैसे उसको वो काम डाउन करे। सो फर्स्ट हम एनएलपी का एक टेक्निक जो बोलते हैं विच इज एंकरिंग। एंकरिंग का मतलब क्या है कि हम ना हमारे इमोशनल स्टेट्स को कोई भी चीज से लेबल कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन let's say my kids are crying and I get triggered, so I would say that this is a part of my family growing, this chaos is temporary, I'm also learning as a mother. So basically मैंने क्या किया, मैंने ये मेरे इमोशनल स्टेट को एक ब्यूटिफुल थॉट दे दिया, पर्सपेक्टिव मेरा चेंज कर दिया, that this is going to happen, I need to calm down, and my brain needs minimum of 15 to 20 encounters to register anything in my subconscious mind. Okay. Now 15 to 20 times जब ये triggers हुआ, जब मैं trigger हुई और मैंने खुद को perspective shift दिया, ये बोल के that this is normal, this is part, I'm also learning, my kids are also growing, मैंने खुद को calm down किया, 15 to 20 times ये किया, that's when मेरा वो trigger dilute हो जाएगा. So you need to do a perspective shift. ठीक है. Number 2 you do is visualization, deep breathing, where you are constantly telling yourself that I visualize a happy family for myself, all the aspects of my life are growing, and we look at the bigger picture now. That this is short term. क्या long term में ये सब important है? क्या long term में ये सब exist करने वाला है? This is all temporary. So मैं खुद को एक long term perspective देती हूँ, right? And third is of course my gratitude, journaling, visualization, all of these things, they really help me on daily basis. It grounds me because when I'm doing meditation, when I'm doing my breath work, क्या हो रहा है मेरे brain में, जो fear center है, the amygdala of my brain, वो कम responsive, low responsive बनता है, and the prefrontal cortex, my thinking brain, ज़्यादा active होता है, और उससे क्या होता है, I get logic to things. That my logical brain is more active. See, I'll explain it. Now, this is my brain. ठीक है? This is my emotional brain and this is my thinking brain. क्या होता है? ये मेरा normally my thinking brain, prefrontal cortex is this, okay? So this is my thinking brain and this is my emotional brain. What happens is जब मुझे trigger होता है ना, सीधा मेरा ये emotional brain hijack कर लेता है मेरा thinking brain. क्या हुआ, मेरा इमोशनल ब्रेन ने थिंकिंग ब्रेन को हाईजैक कर. नाउ एम आई एबल टू थिंक लॉजिकली? नो. अब जब तक ये मेरा एक्टिवेटेड है, आई विल नॉट बी एबल टू थिंक लॉजिकली. मैं हमेशा गुस्से में चिड़ी हुई ही रहूंगी. तो इसको सेटल करने के लिए, इमोशनल ब्रेन को काम डाउन करने के लिए, आई नीड टू प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग, ग्रैटिट्यूड, जर्नलिंग, ग्राउंडिंग थेरेपीज. सो आई नीड टू बेसिकली ऑन डेली बेसिस, I need to do certain things that really calms my brain down, because understand this is a high functioning life for everyone. Correct. And we need some grounding. And these are the simple tools and techniques जिससे हम ground हो सकते हैं, right? So मैं जैसे इसको calm down करूंगी, ये back to its place जाएगा. That's when my logic brain is again coming back in shape, is activated, and I can start thinking logically. So every time you're getting a trigger, think that your logic brain is hijacked. और हाईजैक में मुझे क्या करना है, इसको काम डाउन, इमोशनल ब्रेन को काम डाउन करना है, तभी ये मेरा ब्रेन फिर से थिंकिंग ब्रेन एक्टिवेट होगा एंड आई विल बी एबल टू थिंक स्ट्रेट. सो इसको काम डाउन करने की टेक्निक्स क्या है? वर्कआउट, रीडिंग अ बुक, स्टॉप माइंडलेस स्क्रॉलिंग ऑन इंस्टाग्राम, पिक अ बुक, लिसन टू पॉडकास्ट, और जस्ट गो फॉर अ वॉक, ईट क्लीन, हाइड्रेट योरसेल्फ, 8 hours ऑफ स्लीप. बेसिक्स जो हम सबको पता है बट वी आर नॉट एबल टू डू. करेक्ट. एंड अगर हम ये बेसिक्स ही करने लगेंगे ना, हमारा ब्रेन विल बी लाइक लेट्स डू इट, राइट? एंड अंडरस्टैंड योर ब्रेन इज योर बिलीफ ऑर्गन, राइट? आप उसको जो बिलीव करवाओगे ना, वो बिलीव करने लगेगा. मैं अगर मेरे ब्रेन को बोलूंगी शाहरुख खान इज दी गॉड, माई ब्रेन विल बिलीव इट. वो उसकी रोज पूजा आरती करेगा. एंड देयर आर सो मेनी पीपल हु डू दैट बिकॉज देयर ब्रेन हैज स्टार्टेड बिलीविंग दैट. आई थिंक शाहरुख ने भी जब अपने करियर के स्टार्ट में हर रोज जाके मरीन ड्राइव पे बोला कि एक दिन मैं शहर पे राज करूंगा. Manifestation, NLP. And what is manifestation? Manifestation is a very big part of NLP. Okay. और क्या Talk है? more about it. Do you know what is manifestation? Can you just layman language? Layman language में अगर मैं कहूँ तो मैं अपने आप को ये बिलीफ के साथ बोलता हूँ कि ये मेरी जिंदगी में अच्छा होने वाला है.
और फिर ऑटोमेटिकली मेरे बॉडी का हर सेल, मेरे हर न्यूरॉन उसको अचीव करने के पीछे लग जाता है। करेक्ट करेक्ट। तो सिर्फ सोचने से होगा ऐसा? नहीं, कर्म करने से भी होगा, Right? एक्शन। परफेक्ट। सो लॉट ऑफ पीपल को ये गलत फहमी होते हैं, मैनिफेस्टेशन क्या है, मैंने सोचा, मैं बहुत सोचती रही और मुझे मिल गया। हाँ, नहीं हो सकता। नो, manifestation is your strong positive belief in action. करेक्ट। That's manifestation. स्ट्रॉन्ग Positive पॉजिटिव बिलीफ in इन action. एक्शन। When your that strong belief is in action, that's when you manifest. करेक्ट। और उसको ना हम बहुत सारी अलग अलग चीजें दे सकते हैं। उसको हम रब की मेहरबानी बोल सकते हैं, उसको हम मैनिफेस्टेशन बोल सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं वो तेरी तो कुंडली में लिखा ही था, उसको हम बोल सकते हैं स्ट्रेटेजिकली इसने कितना दिमाग लगा के सक्सेस। आप उसको कुछ भी हो, डिस्कोर्सेस कुछ भी हो सकते हैं, करेक्ट। बट द ट्रुथ इज योर ब्रेन, योर थॉट्स, योर एक्शन, योर स्ट्रेटेजी ऑल आर इन सिंक। इन सिंक। सबसे प्रोफाउंड अगर ट्रांसफॉर्मेशन आपके हिसाब से अगर आपने देखी हो तो कौन सी होगी? एनएलपी का एक बहुत ब्यूटीफुल टूल है व्हील ऑफ लाइफ। ओके, व्हील बताइए। ऑफ लाइफ क्या है? सो फॉर एग्जाम्पल कुणाल, आपको आपकी लाइफ का सक्सेस मैप करना है, तो आप कैसे करोगे? हाउ विल यू कॉल दैट कुणाल जयसिंह इज सक्सेसफुल? शायद अगर मैं ये आंसर करूं, मेरा थोड़ा अलग नजरिया है सक्सेस को हाँ, देखने बताइए का। ना। तो मेरा नजरिया, बिकॉज लोग हमेशा सक्सेस को वेल्थ, फेम एंड फॉर्चून के नजरिए से देखते हैं। मेरे लिए सक्सेस वो नहीं है। मेरे लिए सक्सेस ये है कि मैं अगर रोज सुबह उठ के एक पीसफुल फैमिली लाइफ जी रहा हूँ, जहाँ पे मैं अच्छी चीजें कर रहा हूँ, खुश हूँ, खाने पीने को है, कहीं जाना है उसके बारे में नहीं सोचना, अपनी बेसिक्स कवर्ड है, थोड़ा बहुत लग्जरी भी है, पर मेनली मेरे लोग जो आसपास है वो मेरे साथ खुश हैं, तो मेरे लिए वो ज़्यादा बड़ा सक्सेस है। ओके, अमेजिंग। सो व्हील ऑफ लाइफ ये कहता है कि हमारी लाइफ के ना देर आर लाइक 6 एस्पेक्ट्स जो हमें आगे लेके चलने हैं: फाइनेंस, करियर, हेल्थ, फैमिली, फिटनेस एंड कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। हम्म। राइट। सो अगर श्वेता ने मेरे बैलेंस शीट में लास्ट ईयर एक्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट था, दिस ईयर 2x है, नेक्स्ट ईयर 3x है, सो नॉर्मली एज यू सेड जनता ऐसे ही देखती है कि तुम हाउ मच फॉर्च्यून यू मेड, दैट्स योर सक्सेस। बट we really need to break this old pattern of thinking, and we need to bring in this holistic way of living.